Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu, and in today's class we are about to learn composite functions and invertible functions. हमने already types of function पढ़ लिया है, types of relation पढ़ लिया है. Now what are composite functions? Composite function means the functions which are combination of two or more functions. For example, a function fx is tan x and another function gx is x square. Now I will form few composite functions to illustrate you. First of them is f or f plus gx. Now this simply means we have to add fx and gx. So fx is tan x and gx is x square. That's it. Another one, you can always do f minus gx like same. Another one, f into gx. So that means fx into gx. Now fx is tan x and gx is x square. See, you cannot multiply x square with the angle of this tangent function. So I will write it here. So this is f into gx. Now this is f of gx. F of gx. Now what is the value of gx? Gx is x square. So I have substituted the value of gx. Now what is the function fx? See, fx is tan x. So if I substitute x square at the place of x, यहाँ पे अगर मैं x square डाल देता हूँ तो value बन जाएगी tan x square. So f of gx is tan of x square. So what about g of x? So that means g of fx. The value of fx is tan x. The value of fx is tan x. Now what is the gx function given to us? Gx is x square. So if I substitute tan x at the place of x, so this will become tan x whole square. So that also can be written as tan square x. तो ये होते हैं composite functions. चलिए आगे चलते हैं. Invertible functions. Invertible functions are those which have their inverse also. जिनका inverse भी exist करता है, those functions are called invertible function. See, let there is a function f which goes from 1 to 3 to x, y, z such that f of 1 is x, f of 2 is y, and f of 3 is z. Now what does that mean? That means the function f is defined as 1, 2, 3, set 1, 2, 3 to x, y, z. So 1 is related to x, 2 is related to y, and 3 is related to z. So now जो इसका f inverse function होगा, f inverse, that will be just the reverse of that. जो इसकी कोडोमेन है वो उसकी डोमेन बन जाएगी. So that will actually not be कोडोमेन, ये रेंज ही बनेगी. अभी मैं आपको इसकी कंडीशन बता दूं. यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3. So this will be f inverse. So if I have to show it geometrically, so here we are having x, y, z, and here we are having 1, 2, 3. So x is related to 1, y is related to 2, and z is related to 3. ठीक है, तो ये होता है. अगर ये कोई फंक्शन गिवन है fx, तो इसका जो इनवर्स होगा that will be this, like this. Now suppose there is a function 1, 2, 3 that goes to a set. So that means 1 is related to a, 2 is related to a, and 3 is also related to a. Now if we try to find its inverse, so is that possible?
लेट्स सी, अगर 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज ए है, 3 की भी इमेज ए है, तो दैट मीन्स अगर मैं इसका इन्वर्स करने की कोशिश करूंगा देन ए की इमेज 1 हो जाएगी, ए की इमेज बी 2 हो जाएगी एंड ए की ही इमेज 3 हो जाएगी. नाउ इफ अ सिंगल एलिमेंट इन द डोमेन हैज मोर देन 1 इमेजेस, व्हाट डज दैट मीन्स? इसका मीनिंग ये है कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये फंक्शन है ही नहीं. दिस इज एक्चुअली अ relation. So that means f inverse does not exist. So that shows कि हर एक फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है. So every function is not invertible. तो यहां हम बात कर रहे थे इन्वर्टिबल फंक्शन की. तो कौन से फंक्शंस हैं जो इन्वर्टिबल होते हैं? f is invertible if it is बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव क्या होता है ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यानी कि ये 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए. सिर्फ वही फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं, यानी उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो फंक्शंस बाइजेक्टिव हो. राइट? सो दिस इज अ कंडीशन फॉर इन्वर्टिबल फंक्शंस. ठीक है, तो इस तरह से हम पहले पता लगा लेंगे कि विच ऑल फंक्शंस आर इन्वर्टिबल एंड विच आर नॉट. चलिए आगे चलते हैं. सो अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स कैसे निकालना है, अब हम वो सीखेंगे. हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. सो आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जांपल. So we have a function which goes from r minus 7 by 5 to r minus 3 by 5. So this is domain and this is codomain, right? Such that function fx is given by 3x minus 4 upon 5x minus 7, right? Find f inverse if possible. तो हमें इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है अगर पॉसिबल है तो हाउ डू वी नो कि इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं? बाय चेकिंग इट्स इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी. इसका 1 एंड ऑन टू हम चेक करके देखेंगे कि ये 1 एंड ऑन टू है या नहीं. सो उसके लिए 1 की कंडीशन यू ऑल रिमेंबर. विल एज्यूम that fx1 is equal to fx2, right? Now what will be the value of fx1? That will be 3x1 minus 4 upon 5x1 minus 7. fx2 will be 3x2 minus 4 upon 5x2 minus 7. Cross multiply. So this will become 15x1 x2 21x1 minus 20x2 plus 28 is equal to 15x1 x2 20x1 minus 21 x2 plus 16 plus 20 plus 28. right? now यहाँ पे मैं देखता हूँ कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल ऑफ हो रही हैं. लाइक दिस 15x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, 28 कैंसिल हो जाएगा. नाउ दीज टू आर लाइक टर्म्स. इसको इस साइड पे ला के इसमें से माइनस करेंगे, विल गेट माइनस x1 एंड सेम वे में दीज टू टर्म्स विल ऑल्सो सॉल्व. तो ये बन जाएगा माइनस x2. सो ऑन कैंसिलिंग द साइन वी आर गेटिंग x1 इक्वल टू x2. नाउ यही कंडीशन होती है 1 की. इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 लेने पे x1 इक्वल टू x2 आ जाए, सो दिस शोज दैट f इज 1 1. तो ये हमने फंक्शन को 1 शो कर दिया. राइट? चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं इसको ऑन टू चेक करूंगा. So for on to we are required to find the range. Remember range अगर कोडोमेन के इक्वल हो तो फंक्शन on to होता है. तो लेट करते हैं हम fx को y.
Now this is the function we are having. Now we will find the value of x in terms of y. So on cross multiplying, we'll get 5xy minus 7y is equal to 3x minus 4. इस साइड पे ले आएंगे. We are grouping the terms containing x. Now on taking x common, we'll get 5y minus 3 is equal to 7y minus 4. So the value of x is coming out to be 7y minus 4 upon 5y minus 3. तो ये फंक्शन आ गया हमारे पास. Now is there any restriction of y that you can notice? Yes, there is, because y lies in denominator. So for above to exist, the denominator must not be equal to 0. So that means y must not be equal to 3 by 5. तो यानी y यानी कि जो रेंज है ये उसकी वैल्यू दे रखी है. रेंज कैन नॉट बी 3 by 5. y 3 by 5 नहीं आ सकता कभी भी. सो दैट शोज कि जो इसकी रेंज है वो ऑल रियल नंबर्स है एक्सेप्ट 3 by 5. Now what is the codomain given to us? It is same as the range that we have calculated. Now range is equal to codomain आ चुका है. So this is a condition that f is onto. Now we know that the function f is 1 1 as well as onto. So that means f is invertible. So now what will be the inverse? What will be the inverse? जो आपने x की वैल्यू फाइंड करी थी वही होता है इनवर्स उसका. So that means gy, which is 7y minus 4 upon 5y minus 3 is inverse of fx. Now here you can see that यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो x की टर्म्स में है, whereas जो मैंने उसका इनवर्स दिखाया है वो y की टर्म्स में है. तो हम उसको सेम कर देंगे. x की टर्म्स में भी मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूं. और वी कैन राइट दैट gx, now I am writing it in terms of x, is equal to 7x minus 4 upon 5x minus 3 is inverse of fx. Or we can also write therefore जो f इनवर्स है, हमें ये फंक्शन दिया हुआ था, अब मैं इसका इनवर्स बता रहा हूं. f इनवर्स it will go from r minus 3 by 5. यानी ये जो है जो पहले रेंज थी वो अब डोमेन बन चुकी है क्योंकि इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स हो चुका है, फ्लिप हो चुका है. सो दैट विल बिकम r minus 7 by 5. तो ये है such that f inverse of x is equal to 7x minus 4 upon 5x minus 3. राइट? तो ये हम फाइंड कर चुके हैं इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन. अगर हमें किसी तरह वेरीफाई करना हो कि ये फंक्शन उसका इनवर्स है या नहीं, सो हाउ टू डू दैट? If f and g are inverse of each other, देखिए f का इनवर्स ये f इनवर्स है और इसका इनवर्स वो है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं. Then fog and goff are identity functions. तो अगर दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं तो उनका जो कॉम्पोजिट फंक्शन होगा f of g एंड g of f, ये दोनों फंक्शन जो है आइडेंटिटी होंगे. व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी फंक्शन? वो मैं अब आपको क्लियर करता हूं. देखिए जैसे इस केस में ये fx आया था और gx की वैल्यू हमारे पास आई थी 7x minus 4 upon 5x minus 3. Now I'm going to find f of g. Now the meaning of f of g is f of gx. The value of gx will be substituted here, which is 7x minus 4 upon 5x minus 3. अब जो f फंक्शन है उसमें दो प्लेसेस पे यू कैन सी x है, तो उन दोनों x के प्लेस पे आप ये पुट कर देंगे. सो दैट विल बिकम 3 इंटू एक्स के प्लेस पे ये पूरा आ जाएगा
7x minus 4 upon 5x minus 3 minus 4 upon 5 इंटू x के प्लेस पे ये पूरा आ जाएगा 7x minus 4 upon 5x minus 3 minus 7. तो ये बन गया. इसको मैं सॉल्व करता हूं. ऑन टेकिंग एलसीएम ऊपर तो आ जाएगा 21x minus 12. एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 20x plus 12 अपॉन 5x minus 3. यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं ये बनेगा 35x minus 20 एंड एलसीएम लेने पे 35x plus 21 अपॉन 5x minus 3. ये कैंसिल ऑफ हो जाएगा, राइट. अब और भी टर्म्स है जो कैंसिल हो रही है, जैसे 12 एंड 12. बाकी की जो दो टर्म्स हैं 21x minus 20 दैट विल बिकम x एंड डिनोमिनेटर में 35x एंड 35x कैंसिल हो गए और -20 प्लस 21 करने पे 1 आ जाएगा. सो द आंसर इज कमिंग आउट टू बी x. ये है वो आइडेंटिटी. दैट मीन्स जो फंक्शन था पूरा f ऑफ g, इसका एंगल था x. जो एंगल था वो पुट करने पे आंसर भी x आया. इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन. इसी तरह अगर आप g ऑफ fx निकालेंगे तो वो भी वैल्यू x आ जाएगी. सो दिस इज द मेथड ऑफ वेरिफिकेशन. ये हमें हर क्वेश्चन में करना नहीं होता है. आई होप ये आपको समझ आया होगा. अब मैं एक और ट्रिकी एग्जांपल लूंगा. Now we have a function f which goes from r plus यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स to -6 to infinity such that the function fx is given as 9x square plus 6x minus 5. Find f inverse if possible. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. अब ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखा है फंक्शन. इसको करने का बेस्ट वे आपको मैं बताता हूं. सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में x जो है वो दो प्लेसेस पे है, उसे ग्रुप करने के लिए मैं इसे कंप्लीट कर लूंगा इसका स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से. 9x square can be written as 3x का होल स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट टर्म, इफ दिस इज a square then next term will be 2ab. So 2 into a is 3x into b करने पे ये टर्म आनी चाहिए. तो 2 into 3x करने पे ऑलरेडी 6x आ रहा है. So that means b की वैल्यू यहाँ पे 1 है. तो आई एम कंप्लीटिंग द स्क्वायर हियर. आई हैव गॉट a square plus 2ab. Now I want b square. b is 1. So b square will be 1 square. Now I am adding and subtracting 1 square to maintain the balance और -5 as it is हमने लिखा है. ये आपने 10th में भी कर रखा है एंड 11th में भी मेथड ये कर रखा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर. सो नाउ ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है. a square plus 2ab plus b square, identity of a plus b whole square, and then -1 -5 will become -6. Now this is the question. Now we have changed the question into this form. अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को आगे फर्दर मूव करते हैं. कैसे? सबसे पहले हम 1 चेक करेंगे. तो उसके लिए लेट fx1 is equal to fx2. So fx1, if this is fx, then fx1 will be 3x1 plus 1 whole square minus 6. Then fx2 will be 3x2 plus 1 whole square minus 6. Right? इसके बाद 6 से 6 कैंसिल होगा. एंड देन स्क्वायर जब उधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा देन वी विल गेट 2 वैल्यूज प्लस माइनस 2 वैल्यूज आएंगी. ये आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था मैंने. नाउ अगर ये दोनों ही केस यहीं पे रहते हैं तो ये फंक्शन कभी भी 1 नहीं हो पाएगा. बट इट्स बीन गिवन टू अस दैट द डोमेन इज r प्लस. वी आर ओनली डीलिंग इन पॉजिटिव नंबर्स. सो दैट मीन्स वी विल रिजेक्ट the negative case. So we will consider only this one because the domain is r plus, right? So now we have got 3x1 plus 1 is equal to 3x2 plus 1. 1 से 1 कैंसिल होगा and then 3 से 3 भी कैंसिल होगा तो x1 equals to x2 आ जाएगा हमारे पास.
Now this is the condition of 1 1. So f is 1 1. तो हमें f को पहले इन्वर्टिबल शो करना है, उसके लिए 1 1 हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं. अब हमें इसे ऑन टू चेक करना है कि ये सर्जेक्टिव है या नहीं. तो ऑन टू चेक करने के लिए हमें इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी, राइट. तो रेंज निकालने के लिए हम fx को, ये fx था, fx को y लेट कर लेंगे. सो लेट y इज इक्वल टू 3x plus 1 whole square minus 6. So this was the function fx. Now I will find the value of x in terms of y. So 6 मूव कर दिया हमने अदर साइड पे, देन स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा. आफ्टर दैट 3x विल बी इक्वल टू y रूट y प्लस 6 माइनस 1. देन 3 जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. अपेरेंटली यही इनवर्स है उस फंक्शन का अगर ये ऑन टू प्रूव हो गया तो, राइट. सो व्हाट अबाउट द रेंज? इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन दैट यू कैन सी ऑन y? यस, y जो है वो स्क्वायर रूट में है, रेडिकल साइन में है. सो फॉर above to exist, this y plus 6 must be greater than or equal to 0, right? Then the value of y will be greater than equal to minus 6. So therefore इसकी जो रेंज आई है, रेंज है -6 से ग्रेटर, यानी कि -6 to infinity. Now the range given to us, that codomain given to us is also same as the range. So ये रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल आ गया. So what does that mean? इसका मीनिंग है ये फंक्शन ऑन टू है. So therefore f is on to. So since f is both 1 1 and on to, so this means f is invertible. So that means ये जो फंक्शन था gy is equal to, or in terms of x we can write this is inverse of fx. तो ये इनवर्स आ गया, यही इसका सॉल्यूशन है. अगर आपको वेरीफाई करना हो कि ये सॉल्यूशन ठीक है या नहीं, तो उसके लिए आप f of g और g of f फंक्शन फाइंड कर सकते हैं. सो दिस इज अ मेथड. आप इसके और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए. जैसा कि मैंने बताया था ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को बोरिंग लगता है, तो इसके मैक्सिमम क्वेश्चन जितने हो सके आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप यूज टू हो जाएं और ये क्वेश्चन में आपका फ्लो बन जाएगा. सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.